Assalamualaikum everyone. In the today's lecture, we are going to discuss the difference between the lyophilic and the lyophobic colloids. It is very important short question, and it is very essential is question which could be asked in your viva questions as well as in your theory paper. So this is very important for all of us. So therefore be careful about it, and also write the difference between the lyophilic and lyophobic colloids with the headings. That is very important. Whether it is short, whether it is long, you have to make headings and give the difference between both of these terms. So first of all, we are going to start our lecture, and I request to you to subscribe my channel and like my videos so that it could help me to improve myself. And your subscription and your support will also help me to encourage me and also motivate myself to upload further more such videos for all of you, and to work upon it and to create a very useful and very informative content for all of you. So therefore please subscribe my channel and also like my videos. Don't skip it, and let's start our lecture. So as you know, we are first going to discuss the lyophilic colloids. Which is a lyophilic colloids? Actually, the word lyo mean solvent, and the word philic always mean loving. Okay, that these are the colloids which are solvent loving. While if you see at the lyophobic colloids, the word lyo means solvent and the phobic mean hating. Means these are the colloids which are solvent hating. They do not like solvent, and they are not compatible with the solvent. So they cannot disperse easily into the solvent. So the lyophobic colloids are which solvent are which lyophobic colloids are the solvent which are solvent loving, because they are easily soluble in your solvent, and they are easily compatible with it, and they get easily dispersed in it. The word dispersion and the word dissolve, these are the both different terms. Majority of student confuse these terms. The word dissolve mean कि क्या है कि आपने एक इस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ये आपने एक बीकर लिया है. इस बीकर के अंदर आपने वाटर ऐड किया हुआ है पहले से ही, या कोई और भी सॉल्वेंट है. आप इसमें एक सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, और वो सोल्यूट क्या है, फॉर एग्जांपल NaCl हम लोग कह लेते हैं. और फिर जब आप इसको शेक करेंगे तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सारा जो NaCl होता है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है बिल्कुल भी. और हमें जब हम ज़्यादा ही शेक करते हैं तो हमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स तक नज़र नहीं आते, मतलब वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर पूरा डिज़ोल्व हो चुका है. लेकिन जब हम डिस्पर्स की बात करते हैं ना, तो डिस्पर्स में क्या होगा कि सोल्यूट वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वाटर का एक और लिया है बर्तन, और इसके अंदर मैं एक ऐसा सोल्यूट डालती हूँ जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता. तो क्या होगा कि वो सोल्यूट डालने पर इस वाटर के अंदर उस सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे, एक जगह एग्रीगेट नहीं करेंगे, फैल जाएंगे. बट क्या होता है कि कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं कि जब हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर है, और कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जब हम उसको डालते हैं तो उस बॉटम पे सिंक कर जाते हैं. मतलब पूरा जो उनकी एक तह बन जाती है बीकर के बॉटम के ऊपर, और वो एक हार्ड केक की फॉर्मेशन कर देते हैं बीकर की बॉटम के ऊपर. और कुछ सोल्यूट ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये आपका वाटर हो गया, और कुछ सोल्यूट इस तरह होते हैं कि वो वाटर में जाके आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाते हैं. मतलब इस तरह के आपस में एक कन्फ्यूजन्स बना लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके इस तरह के एग्रीगेशंस कर लेते हैं. सो ये काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिनमें सोल्यूट जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जब भी वो जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर. लेकिन अभी जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइड्स का डिस्कस कर रहे हैं कि वो जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर लायोफिलिक कोलाइड, आपके पास कोई लायोफिलिक कोलाइड आता है, आप उसको इस वाटर के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, इस तरह डिस्पर्स हो जाएगा, उस
उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स आपस में डिस्पर्स फॉर्म में होंगे, कोई भी कंबाइन नहीं होगा, कोई भी इस तरह से एग्रीगेट नहीं करेगा, ना ही बॉटम पे ये सेटल अप होंगे। ये इस तरह की कोलाइड है। लेकिन जब आप लायोफिलिक फोबिक कोलाइड की बात करते हैं, सो क्योंकि ये वाटर हीटिंग है, सॉल्वेंट हीटिंग है, तो ये इस तरह की डिस्पर्शन शो नहीं करेंगे। या तो ये बॉटम के ऊपर सिंक कर जाएंगे या आपस में इस तरह से एग्रीगेशंस कर जाएंगे। सो ये इस तरह का बिहेवियर शो करती है, मतलब इसने वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं होना है, इसने वाटर के अंदर डिस्पर्स नहीं होना, जिस तरह ये लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं। अगर आप इसका प्रोसीजर देखें प्रेसिपिटेशन का, तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस क्या होता है? प्रेसिपिटेशन यही है ना कि हम लोगों का क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएं। सो इस चीज़ को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगर हम लायोफिलिक कोलाइड की बात करें तो इनमें क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन का ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होगा, मतलब रिवर्स हो सकेगा। अच्छा जी, अगर हम लोग लायोफोबिक कोलाइड्स की बात करें तो इनमें प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब वो वापसी रिवर्स नहीं होगा। अगर एक दफ़ा सॉल्यूट के पार्टिकल्स इनके अंदर जो है वो प्रेसिपिटेट हो गए तो वो दोबारा जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं आएगा या दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के दरमियान। जो थर्ड डिफरेंस है डैट इज़ ऑन द बेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इन दोनों के दरमियान किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम लोग लायोफिलिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी आपका कोलाइड और आपका लिक्विड जो है, क्योंकि वो कोलाइड जो है वो हमारा वाटर लविंग है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बना रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो इसके बीच में बनेंगे। जबकि जब हम इसमें बात करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की बात करते हैं तो इनमें क्योंकि लेस फोर्सेस होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है कोलाइड और लिक्विड, क्योंकि ये वाटर सॉल्वेंट हीटिंग है ना, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बीच में ना। अच्छा, अगर उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं तो वो विस्कोसिटी का आ जाता है। अगर हम लायोफिलिक की बात करते हैं तो इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा गाढ़े होते हैं ये। और अगर हम लोग लायोफोबिक की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनकी विस्कोसिटी बिल्कुल सेम ऐसी होती है जैसे हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी जो हम ये सॉल्वेंट ऐड करेंगे जो कि कोलाइड के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, तो उस कोलाइड की जितनी भी विस्कोसिटी होगी और सॉल्वेंट की जितनी भी विस्कोसिटी होगी वो सेम हो जाती है, मतलब विस्कोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें तो उसमें ना हमने अदर नेम दिया है, मतलब लायोफिलिक को हम और कौन सा नेम दे सकते हैं और लायोफोबिक को और कौन सा नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लायोफिलिक के लिए एक और वर्ड यूज़ किया, डैट इज़ हाइड्रोफिलिक। द वर्ड हाइड्रो, आपको पता है कि वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर एंड द फिलिक मीन लविंग, यानी ये वाटर लविंग है। और यहाँ पर हम लोग लायोफोबिक को हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, यानी ये वाटर हीटिंग है। सो इन दोनों की बिल्कुल वही की वही टर्म्स हैं जैसे हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात की, बस इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो वाटर है हमारा, यहाँ पर इनमें जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे वो कोई भी हो सकता है। देखिए सॉल्वेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ईथर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो सकते हैं, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, बहुत सारे सॉल्वेंट्स इस तरह हमारे पास हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं। सो वो इन कोलाइड्स को बनाने के लिए हम कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग इन दो टर्म्स की बात करते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, तो इसमें हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमारा सॉल्वेंट सिर्फ़ और सिर्फ वाटर होगा, हम कोई और अल्कोहल या एसीटोन या कोई और सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसमें वाटर यूज़ होगा। सो इस वजह से इसका अदर नेम है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर। चौथी चीज़ आ जाती है प्रिपरेशन। इन दोनों की प्रिपरेशन में भी फ़र्क है। अगर फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है कि आप लायोफिलिक कोलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत इजी इसको प्रिपेयर करना है। आप क्या लेंगे, एक कोलाइड ले लेंगे अपने पास और लिक्विड ले लेंगे, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, आपका लायोफिलिक कोलाइड तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स की, तो इनको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैंने आपको पहले यहाँ पर भी बताया है कि क्योंकि ये अपने सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं है, सॉल्वेंट से ये अपना हेट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के साथ इनके पास
लव नहीं कर रहे हैं सॉल्वेंट से रिपेल कर रहे हैं ये। सो इस वजह से ये क्योंकि सॉल्वेंट के साथ इनका इतना इंटरेक्शन नहीं है, सॉल्वेंट के अंदर ये इतना ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होते, इस वजह से इनको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। मतलब हम इसको प्रिपेयर करने के लिए ये नहीं कर सकते कि हम लोग कोलाइड उठा लें और सॉल्वेंट उठा लें और आपस में इनको मिक्स कर लें और हमारा बन जाए, इस तरह नहीं होता है। हमें इसके लिए ना कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर एक टेक्निक लिखी हुई है, डेट इज़ मैकेनिकल एग्रीगेशन, कि हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से गुजारेंगे, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती हैं वो इसके ऊपर डालेंगे। इसके अलावा एक कंडेंसेशन मेथड होता है, उससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सो इसके प्रिपेयर करने की काफ़ी टेक्निक आ जाती हैं, लेकिन जो हमारा लायोफिलिक है वो बेचारा बहुत सिंपल है, वो आसानी से प्रिपेयर हो जाता है क्योंकि ईज़िली उसने डिज़ोल्व हो जाना है, डिस्पर्स हो जाना है। सो वो बिल्कुल भी हमें जो है परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं ये इस वजह से हमें तंग करते हैं क्योंकि ये आसानी से प्रिपेयर नहीं होते हैं। जो लास्ट पॉइंट है डेट इज़ अबाउट थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, कि इन दोनों में से थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है। सो अगर हम लोग लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करते हैं तो वो ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबल होते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं ये वाले, ये थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो दो टाइप्स हो गई हमारी कोलाइड्स की। एक और थर्ड टाइप भी है हमारे कोलाइड की, डेट इज़ एम्फोटेरिक या एम्फीफिलिक कोलाइड्स। तो मैंने इसको राइट नहीं किया हुआ, बट मैं आपको ऐसे ही ओरल इसका बता देती हूँ, आप राइट कर सकते हो अपने नोट्स में। सो एम्फीफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं उनमें क्या होगा कि आपके जो वहाँ पर जो हमने सोल्यूट एज आ यूज़ करना है, तो वो हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयन, पोलर और नॉन पोलर जो आयन्स होंगे हम उनको यूज़ करते हुए उनको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एम्फीफिलिक कोलाइड्स की, वो लायोफिलिक कोलाइड्स से ज़्यादा मिलती हैं। मतलब जैसे लायोफिलिक कोलाइड्स की विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा है, तो एम्फीफिलिक की भी विस्कोसिटी ज़्यादा आती है। इसी तरह ये भी थर्मोडायनेमिक स्टेबल होते हैं और वो भी एम्फीफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं वो भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके बारे में बता दिया। अच्छा जी, लास्ट जो पॉइंट आ जाता है ना वो आ जाता है एग्जाम्पल का। आपने ना एग्जांपल भी देनी है कि लायोफिलिक कौन कौन से कोलाइड्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम लायोफिलिक कोलाइड्स की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि रबर और पॉलीस्टाइरीन ये आपस में डिस्पर्स हो जाते हैं बेंजीन के सॉल्वेंट के अंदर। सो आप क्या लेंगे, आप एक इस तरह के बीकर में बेंजीन डाल देंगे और उसके बाद या तो आप रबर ले लें या आपके पास पॉलीस्टाइरीन जो भी हो इनमें से, आप उसको उठा के उसमें डिज़ोल्व कर देंगे। तो आप देखेंगे कि तो कुछ देर के बाद रबर के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह बेंजीन के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, या पॉलीस्टाइरीन के सारे जो होते हैं पार्टिकल्स वगैरह वो इस तरह डिस्पर्स हो जाएंगे। सो ये एक गुड एग्जांपल है लायोफिलिक कोलाइड्स की। अगर आप हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की भी यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो कि वाटर के अंदर कौन कौन से हाइड्रोफिलिक कोलाइड डिज़ोल्व हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है अल्ब्यूमिन, जिलेटिन, एकनिन, ये सारे ऐसे कोलाइड्स हैं जो वाटर के अंदर ईजिली सॉल्युबल हो सकते हैं। अगर आप हाइड्रोफिलिक फोबिक कोलाइड्स की बात करते हैं तो उसमें एग्जांपल भी मैंने दी हुई हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सल्फ़र हो गया। तो ये हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स हैं। जैसे आपको पता है गोल्ड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, और सिल्वर भी इसी तरह है, सल्फ़र का भी इसी तरह का बिहेवियर है। जबकि जब हम अल्ब्यूमिन, जिलेटिन और एकनिन इनको हम लोग जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके एक अच्छा कोलाइड जो है वो हम लोग बना सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। In the next video we will go to discuss about the whole collide and discuss how to prepare lyophobic collides, इसके सारे मेथड पढ़ेंगे। and then we also discuss about how to purify these collides and so इस तरह का जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में लेक्चर आएंगे। सो आपने लेक्चर को वॉच करते रहना और लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।